मैं अक्सर काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर से मिलता रहता हूँ, इवन जवानों से मिलता हूँ। तो उनको यही रहता है कि जब तक सर्विस में है, और कई बार क्या होता है, शुरू में ही जाके एक घर खरीद लिया। तो घर खरीदना तो है सबको, लेकिन अगर कुछ जोड़ के खरीदेंगे तो बेटर रहता है। अभी घर खरीद लिया 50 लाख 1 करोड़ का, जो उनको अच्छा लगता है, और उसका ईएमआई शुरू हो जाता है। तो अभी होता है कि आप पूरा पैसा जो भी आता है उसका ईएमआई में ही चला जाता है सही काफी। बात है। तो अगर वो सारा पैसा इंटरेस्ट में, ईएमआई में ही देते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए कि पहले आप अपना पैसा कुछ सेविंग करें। Hello everyone. Today I have a reputed guest with me, Colonel Sunil Kumar Gupta, who runs his own individual financial company, 30 years of experience in the army and equally long exposure in the financial markets. From the past 6 years now, he is running his own financial firm with the mission that he wants to improve the lives of the army jawans and the army officers. He is so passionate about his work that he has chosen to speak to us today on this platform to make sure that you understand your financial liabilities and address them well, like an individual, with all the courage, with all the dignity and respect. Over to you, Colonel. I have 30-year experience in the army, as well as exposure to all kinds of financial products that may be in stocks directly, mutual funds, and insurance also. And you'll be glad to know, for my personal being, I've done very well and staying a very healthy and wealthy life. Same thing I would like to help my friends who are retiring or who are serving also. I've been interacting them. Those who have been interacting with me can vouch for me that I have been trying to give them the best. अभी ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस की तरफ जो जुड़ा, खिंचा, कैसे खिंचा? लाइक व्हाट वाज इट दैट रियली पुल्ड यू इनटू इट? See, everybody wants to be financially safe and should be able to fulfill all its requirements through the finances, which he doesn't have to borrow from or beg from somebody else. I started my journey in 1990 when I was doing a degree course at Pune. Started learning, going to the exchanges in the afternoons, in the spare time, and you'll be glad to know that I earned first 1 lakh rupees during 1990. And that time, it was a huge money. And since then, once you start making profits, you start living a better life, you start enjoying what you are doing. And that's what happened with me during that time. Since then, it was never looking back. It was only I was improving my skills and wits by continuously upgrading through various tests, webinars, by training and other effects. तो उस समय आप कितने उम्र के थे, कितने यंग या कितने ओल्ड, अगर हम कहें, आप 1990 में थे जो आपने पहली बार ये डिसीजन लिया कि मैं फाइनेंशियल फील्ड में एक्सपोज करूंगा अपने आप को? I was 28 years that time. वेरी हम हमेशा चाहते थे कि हम अपने बलबूते पे ही जो भी करें खुद करें, किसी से वेरी पैसा नाइस, मांगना पड़े. वेरी और गुड. luckily, God also helped us. We were, whatever we did, we had quite a number of successes. Of course, certain failures were also there. That is part and parcel of the life. But one thing I have learned, any investment is an investment only when we do it for a long period of time. वीडियो का उद्देश्य क्या है जो आज आप हमसे बात कर रहे हैं? प्लीज कर्नल बताइए. मैं अक्सर काफी आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवल ऑफिसर से मिलता रहता हूँ, इवन जवानों से मिलता हूँ. तो उनको यही रहता है कि जब तक सर्विस में है, और कई बार क्या होता है, शुरू में ही जाके एक घर खरीद लिया. तो घर खरीदना तो है सबको, लेकिन अगर कुछ जोड़ के खरीदेंगे तो बेटर रहता है. अभी घर खरीद लिया 50 लाख 1 करोड़ का, जो उनको अच्छा लगता है, और उसका ईएमआई शुरू हो जाता है. तो अभी होता है कि आप पूरा पैसा जो भी आता है उसका ईएमआई में ही चला जाता है. और क्योंकि उसने ज्यादा लोन ले लिया है, और ईएमआई का भी जो 1 साल 2 साल तक देता रहता है, उसके बाद भी प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो उतने का उतना ही उतना ही देता है. बना रहता है. खाली इंटरेस्ट पोर्शन में ही थोड़ा बहुत कम होता है. सही बात तो है. एक किस्म का ये लाइबिलिटी ही रहती है उनके पास काफी देर के लिए. सही काफी. बात है. तो अगर वो सारा पैसा इंटरेस्ट में, ईएमआई में ही देते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? ट्रू. इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कुछ पैसा तो होना चाहिए. अगर आगे पैसा है बुढ़ापे के नहीं, लिए तो कुछ जमा करके रखना है जब ये हाँ, जॉब नहीं रहेगा. सही बात है. तो तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए कि पहले आप अपना पैसा कुछ सेविंग करें. इवन अगर आपको घर खरीदना है तो 20-30% जो अप फ्रंट देना है उसको, उसके लिए एसआईपी के थ्रू थोड़ा सा पैसा एक जोड़िए. कॉर्पस लंप सम जमा करा जाए. लमसम जमा कर लीजिए, जो कि आप इमीडिएटली पे कर सकते हैं.
राइट कोई भी SIP आपको 4-5 साल के दौरान 12 से 15 से 20% तक रिटर्न दे सकती है। वेयरएज अगर आप लोन लेते हैं तो खाली लोन में आप 8-9% ही दे रहा है, लेकिन आपका पूरा पैसा 8-9% को ही पूरा कर रहा है। तो इधर आपका पैसा बनेगा, उधर आपका पैसा खत्म हो रहा है। तो यानी कि अगर हमारे को लोन 8% पे लिया हमने, और अगर हमने मार्केट से 14% या 12% कमाया, फिर भी हमें 4%, 4% का फायदा हुआ, राइट? हाँ जी, वेरी नाइस। फायदा होता है। सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ SIP इज ऑलवेज बेटर देन ए EMI। राइट So first you start your SIPs, then you take out the money and pay that money as advance, and then you can have a much better future. और आप SIPs के साथ कुछ PF की भी बात बता रहे थे। हाँ, अभी लेटेस्ट 1 साल से क्या हुआ है कि कुछ लोग जिनके पास पैसा नॉर्मली अभी आर्मी की डिफेंस पीपल की सैलरी जो है अच्छी है, दे हैव गॉट सरप्लस कैश विद देम and they can save up to 1 lakh rupees also, 50,000 rupees also, depending upon their individual requirements. So now government has put up a limit कि DSOP जो प्रोविडेंट फंड है, हाँ, उसमें आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये लिमिट अब लगा है, पहले कोई लिमिट नहीं था, आप ऐसा पहले कहना कोई चाह रहे हैं? हाँ, ओके तो ओके, पहले मैक्सिमम अफसर जिनके पास कहीं और डालने का नहीं है, कोई और रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, तो राइट वो सबके सब DSOP में डालते थे 7.1% के हिसाब से। ओके, उनको रिटर्न मिलता था क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी नहीं रहती थी, ऊपर नीचे नहीं होता था, उतार चढ़ाव नहीं आता, जितना डाला उतना पैसा सेफ रहता था। राइट सेफ्टी को देखते हुए काफी अफसर उसमें पैसे डालते थे। राइट, अभी क्या हो गया, अभी 5%, 5 लाख से ज्यादा डाल नहीं सकते। तो अभी जो बाकी का पैसा है 5 लाख के ऊपर का पैसा जो है, वो बैंक सेविंग बैंक या बैंक हाँ, की कहाँ करें उसको? सही बात है, बैंक में रखेंगे। हाँ, ठीक है, तो बैंक उनको देता है 3.5 या 3% सेविंग बैंक में इंटरेस्ट, और स्वीप अकाउंट लगाएगा तो 5-6% दे देगा, और वो सब टैक्सेबल है। तो उससे अच्छा ये है कि वही पैसा आप थोड़ा रिस्क लेके, जहां आपको पैसा ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा बढ़े, मीडियम रिस्क, FD हाँ, से 3-4% आपको ज्यादा सही मिलता बात है, है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में SIP लगा सकते हैं, यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है वो कम ज्यादा होता रहता है, और आपको FD से 3 से 4% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, और ये टैक्स एफिशिएंट भी होगा, टैक्स भी बचेगा इसमें। तो ये दिस कुड बी a better way of investing your money through the SIPs over a long period of time, where you can earn returns of 12 to 15%. And if it happens that if you are investing say 15,000 rupees per month for 15 years and assuming a return of 15%, you can easily create 1 crore rupees, which can be your another emergency corpus, a third corpus which can be utilized as per your well-being. इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए हैं कर्नल गुप्ता, कि अगर हम डिसिप्लिन के साथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें तो वो मल्टीप्लाई होके एक बहुत बड़ा कॉर्पस हमारा बन के तैयार हो सकता है। And that corpus can be kept as your corpus for 15,000 rupees. Nowadays is not a very big sum, and over the periods of time, this will not be remaining what value it has today. राइट राइट, So one should think of creating a wealth which can be utilized for their own personal being, so that in their old age they are not dependent on anybody for any kind of money. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and smash the bell icon so that you are notified when our next video is out. So keep smiling. Signing out here, Punita Lakhani, Modern Mirabai. See you in the next video.